Hello guys, welcome to another practice session video, and in this video we are continuing the algebra questions. So we have the first question, that is from log. We have to find the value of this given expression. So I can see there is a very important property, log a with base b can be written as reciprocal of log base b and a. A and B can be interchanged when we are reciprocal the given log term, right? So I can say this log base 312 1 upon can be written as log base 12 3, and similarly 1 upon log base 4 12 can be written as log base 12 4. Whenever we are solving a question, it is very important observation that all the log terms should have the same base. You have to just make sure that we should have the same base log term so that I can solve the question very easily, right? So now in this we have the base equal to 12, right? So we have to add these two. So this is log base 12 3 plus log base 12 4, right? So another property of log is that log base a x plus log base a y. So whenever we have addition, I can multiply x and y, right? So similarly I can write log base 12, and this is 4 into 3, so this is nothing but 12. So log base 12 12. And there is another important property, if we have the same base and the same number, answer will be 1. So using the same concept, the answer is going to be 1. Option number C is the right answer. I believe it is clear. Now moving to the next question. This is another interesting question. We have to find the sum of the n terms of the given sequence, and in terms of n we have to find, right? So there are many ways of solving this question also, but whenever we have such question that we have the formula based options, right? So just try to get the answer by putting the values of n. So definitely if I put n equals to 1, तो n equals to 1 का मतलब क्या है, that this term will be 3, summation will be 3. So if I put n equals to 1 here, this is 2 की power 1 plus 2 minus 1 minus 4. So this is 8 minus 4 minus 1 minus 4. So 3 is the answer of the question. We can check other option also, right? If I go for the option number B, this is 2 into 2 की power 1 minus 1 minus 1. So this is 2 into 2 minus 1 is 1. This is 1. So this is not the answer. Similarly, if I go for the option number C, this is 2 power n minus 1 minus n, 2 power 2 1 minus 1 minus 1, this is 0, because 1 minus 1 is 0, 2 power 0 minus this 1 minus 1 0. That this is not the answer. And we have the last also, 2 1 plus 1 minus 1, that is 2 power 2 minus 1 is 3. So might be possible that option D can be correct, right? Okay. Then in that scenario, what we have to do? So we can check for the n equals to 2 also, right? So if I put n equals to 2, so this will be option number A will be, this is 2 to power 2 plus 2 minus 2 minus 4. This is 2 power 4 minus 2 minus 4. So this is 16 minus 6. This is 10, right? This is 10. And if I check for the summation of these two, this is 4 plus 2 plus 1. And this is 3. So this is going to be 10. Of course, so this is the answer of the question. I believe it is clear. This is one of the easiest way of solving such questions. And if I put n equals to 2 in this option, so I'll be having 2 plus 1 minus 1, this is 7. So this is not the answer, because if we are putting n equals to 2, actually I am calculating the two brackets, right? So that was the way we can solve the question using the options. If you want to know the methodology, I can tell you, but I don't think that I should discuss it here because the वीडियो विल बी लॉन्ग देन, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड वैसे भी आप इसको ऑब्जर्व भी कर पा सकते हैं दैट इट इज जस्ट, अगर हम इसका nth टर्म निकालेंगे बाय यूजिंग दैट ऑल्सो यू कैन गो फॉर द समीशन, राइट? चलिए वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन.
we have to find the number of real roots of the given equation, right? So one thing you should know that x square is nothing but the mod x ka whole square. Both are having the same value, right? So I can replace x square by mod x square, and as soon as I replace this x square by mod x, I have the quadratic equation, and this is x square minus thrice of mod x minus 2 can be written as minus twice of mod x minus mod x plus 2 equals to 0, right? So from here I can take mod x common. So this is mod x minus 2, and minus 1 common लेंगे. This is mod x minus 2 again equals to 0. So from here mod x minus 1 equals to 0, and also mod x minus 2 equals to 0. So mod x का वैल्यू या तो 1 आएगा एंड या तो mod x का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा, राइट? अब एक चीज़ आपको समझना है दैट यहाँ से अगर इसको मोड को एक्सपेंड करते हैं तो मोड x इक्वल्स टू 1 है, तो x कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 1. आई बिलीव इट इज क्लियर. एंड सिमिलरली दिस मोड x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब x कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 2. आई होप इट इज क्लियर, राइट? So we have 4 possible solutions, that x equals to 1 also, minus 1 also, for 2 also, and minus 2 also. So 4 real roots are there, right? You can put the values also, you can get the answer. Like if I put 1 equals to, that is 1 minus 3 plus 2, again 0, minus 1 ka square minus 3 minus 1 plus 2, this is mode, so this is 1 minus 3 plus 2 again, right? And this is true for 2 also, right? So this equation has the 4 real roots. Moving to the next question. Again, the sum of the all real roots, right? So this is directly a quadratic equation, you can see. So I can solve it directly, or you can also put mod x minus 2 equals to t. And if you want to simplify, you can write this way also. So this is t square plus t minus 2 equals to 0. This is t plus 2 into t minus 1 equals to 0. So t can be minus 2 and t can be 1, right? T can be minus 2 and t can be 1. So once I get t equals to minus 2, this is mod of x minus 2 equals to minus 2, and this is mod of x minus 2 equals to 1, right? Now sum of the all real roots of the given equation, right? So यहाँ से अगर हम देखेंगे, this is not possible actually. Why? Because this mod of x is always greater than equals to 0. This cannot be negative. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि नेगेटिव आएगा. इसका मतलब यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा. एंड वन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इज दैट mod of x इक्वल्स टू k. So x can be plus minus k also, right? तो यहाँ से x माइनस 2 या तो ये 1 आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आएगा, और x माइनस 2 अगर ये माइनस 1 आएगा तो x का वैल्यू यहाँ से 1 आएगा, राइट? नाउ इट इज आस्किंग दैट फाइंड द सम ऑफ द ऑल रियल रूट्स. सो 1 वैल्यू इज 3 एंड 1 इज 1, सो x इक्वल्स टू 3, 1, तो सम वुड बी 3 plus 1, that is 4. I believe it is clear. Option B correct answer है. I hope it is clear. Now moving to the next question. Now in this question, it is saying that if the half-life of the substance is 5 years, means any amount is remaining half of it, the initial value in 5 years, then the total amount of the substance left after 15 years, when the initial amount was 64. Very easy, right? So initially it was 64 and 32, then 16, then 8. I believe it is clear. So this is taking 5 years for the half. Every half is taking 5 years. So again this is 5 years, and again this is 5 years. So 15 years, after 15 years, the amount will be 8 gram left, right? So it is asking that find the amount left after 15 years. So this is nothing but the 8 gram. Very easy. Moving to the next question. Again we have log question. So log base 2x
plus log base 4x plus log base 8x plus log base 16 equals to 25 upon 36, right? So one thing I just told you that we should have the same base while solving the log, right? So if I want to have the same base, or I can write one important property is that log base a power m and b power n, this can be written as n upon m log base a then b, right? So using that property, this is log base 2x plus this can be written as 2 square and this is 2 cube and this is 2 power 4x. I believe it is clear. So using the property, I can take the terms in the denominator, that is this is going to be 1 upon 2 log base 2x 1 upon 3 log base 2x plus 1 upon 4 log base 2x, right? So from here I can take out log base 2x common. So this is 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4. I believe it is clear. And this is nothing but 25 upon 36. So LCM would be, that is 12, right? So this is 12 plus 6 plus 4 plus 3 log base 2x, right? This is 25 upon 36, right? तो 12 6 18 4 22 3 25, right? So this is log base 2 25 upon 12 equals to 25 upon 36, right? 25 upon 36, right? And this is the multiplication, right? This is in multiplication, right? Okay, just hold on. ये यहाँ पे log base x different है. This is log base 2x into 25 upon 12, right? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आई कैन से log base 2x equals to 1 by 3. So removing the log, x will be equals to 2 की पावर 1 by 3, right? तो x का वैल्यू आ गया 2 की पावर 1 by 3. नाउ इट इज आस्किंग दैट x equals to 2 की पावर k. तो आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? तो x equals to 2 की पावर k and x is actually 2 की पावर 1 by 3 and 2 की पावर k. So on comparing the exponents, I can say that k is nothing but 1 over 3. ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है, राइट? तो इस तरह की एक्सपर्टीज आपकी होनी चाहिए while solving the questions, right? We have to move to the next question. This is another important and just logic based question and आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो नंबर हैं ए बी, तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी अपॉन 2 एंड उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ऑफ ए बी, राइट? Once you know this thing, you can solve the question. We have to find the quadratic equation whose roots are, right? तो quadratic equation जब आप लिखते हैं, and you should know that while writing the quadratic equation, this is very important. X square minus sum of root into x plus product of roots, right? तो ये बात आपको पता होना चाहिए. And if you know this thing, then you can solve this question, right? So if the roots are alpha and beta, or I can say roots are a and b, x square minus a plus b into x plus a into b. So these are roots, right? A into b, where a b are the roots, right? a b अगर इसके roots हैं तो हम इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं. तो now it is saying that arithmetic mean is 34. तो अर्थमेटिक मीन अगर 34 है, इसका मतलब a प्लस बी अपॉन 2 का वैल्यू 34 है. यहाँ से a प्लस बी जो है वो 68 के इक्वल आएगा. तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 68x, राइट? तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है. अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? दैट इज रूट ए बी. तो ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन टू अस 16. तो 16 इक्वल्स टू रूट ए बी. यहाँ से ए बी का वैल्यू निकलेगा इसका स्क्वायर करके, दैट इज 256. तो प्लस का 256 इक्वल्स टू 0. सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 68. तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है. आई बिलीव इट इज क्लियर. ठीक है, तो दैट वाज अनदर सिंपल ऑब्जर्वेशन दिस क्वेश्चन, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So again it is asking that we have to find the Tn if Sn is given to us, right?
तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ n, इट इज सेइंग दैट Sn इक्वल्स टू 5 into 2 की पावर n minus 1, then we have to find the value of Tn, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो दिस इज 2 की पावर 1 minus 1, तो 5 into 1 दैट इज 5, राइट। इसका मतलब जो S1 होता है वो T1 के इक्वल होता है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज का 5 है, राइट। अब जो भी ऑप्शन मुझे यहाँ पे 5 दे सकता है मैं उसको ढूंढ लेता हूँ। तो अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 5 into 2 की पावर 1 plus 1, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये तो बनेगा ही नहीं। 5 into 2 की पावर 1/4, तो दिस इज 10/4, नॉट इक्वल्स टू 1, भाई सॉरी नॉट इक्वल्स टू 5, नॉट इक्वल्स टू 5, राइट, नॉट इक्वल्स टू 5। नाउ अगेन दिस इज 5 into 2 की पावर 1 minus 1, so this is 5 into 2 की पावर 0, that is 5 into 1, that is 5, and this is 2/5 into 2 की पावर 1 minus 1, so this is 2 की पावर 5 into 1, that is 2/5, तो of course my answer will be that is 5, तो जो भी आंसर 5 का है वही मेरा आंसर होगा, that is ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का ये सबसे आसान तरीका है, ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाना नहीं है इसमें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पहले पे n की वैल्यू 1 रखने पर 2 ऑप्शन ठीक बैठ जाए तो फिर n की वैल्यू 2 डाल के देख लो, राइट, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अनदर अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था। तो वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नथिंग बट लेस देन इक्वल्स टू x, मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें 1.2 लिखता हूँ तो इसका आंसर 1 आएगा, बिकॉज नंबर लाइन पे जब आप 1.2 बनाओगे तो आपको एक छोटा जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके लेफ्ट वाला लेना होता है। सिमिलरली अगर ये माइनस का 2.3 लिखा है तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग माइनस 2.3 इन द नंबर लाइन एंड वी हैव टू जस्ट गो टू द इंटीजर जो कि इससे जस्ट छोटा है, तो आंसर यहाँ पे -3 आएगा, राइट, दिस इज -3, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए तो बोलता है आपके पास √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √4 √5 अप टू √120, राइट। चलो तो इसका वैल्यू निकालना है, राइट। देखो भाई यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अगर मैं देखूंगा इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखेंगे तो √2 की वैल्यू यू नो दैट इज √2 की वैल्यू 1.414 होता है, तो इसमें अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा डेफिनेटली 1.414, तो इसका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये भी वैल्यू आपको 1 देने वाला है, ये भी वैल्यू 1 देने वाला है, और उसके बाद 4 पे जाके आंसर चेंज होने लगेगा, ठीक है भाई। 4 पे आपको 2 मिलेगा, 5 पे भी 2 मिलेगा, 6 पे भी 2 मिलेगा, 7 पे भी 2 मिलेगा, 8 पे भी 2 मिलेगा, 9 पे जाके फिर चेंज होगा, तो 9 पे भी आपको 3 मिलेगा, फिर 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे चेंज हो जाएगा। तो ये पैटर्न बनेगा, राइट। पैटर्न कैसे बनेगा देखो भाई, 1 इज कमिंग 3 टाइम्स, 2 इज कमिंग 5 टाइम्स, 3 इज कमिंग 7 टाइम्स, 4 इज कमिंग 9 टाइम्स एंड सो ऑन, राइट। आपको ये पता चलेगा। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 120 लिखा है, राइट, तो उससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 100 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखता हूँ तो ये 100 आएगा, एंड उसके बाद √101 प्लस √102 एंड ऐसे करते करते √120 प्लस √121, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सारे के सारे 10 पे एंड होंगे 121 को छोड़ के। भाई 121 तो 11 का स्क्वायर है तो 11 पे एंड होगा, दैट उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 11 होगा, बट इन सब का तो 10 ही होगा, आई बिलीव इट इज क्लियर। तो 1 पे आपके पास भाई ये देखो 3 5 7 9 ऐसे AP बन रहा है, आपको 10th टर्म पे जाना है, तो 10th टर्म विल बी A + 90, तो A का वैल्यू 3 है एंड D का वैल्यू आप देख रहे हो 2 टर्म का डिफरेंस है, तो 21 आएगा। इसका मतलब, और यू कैन चेक दैट 10 विल बी कमिंग 21 टाइम्स, 5 11 6 13 7 15, भाई 6 13 7 15 8 17 9 19 एंड 10 21। तो यही तो हमने बोला आपको कि आपके पास AP को सॉल्व करके भी सेम ही रिजल्ट आएगा, बट अब इनका सम करना है, राइट। तो दिस इज 3
प्लस 10 प्लस 21 प्लस 36 प्लस 55 प्लस 78 प्लस 105 प्लस 136 171 एंड प्लस 210। दिखने में बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा था बट अच्छा खासा दोस्तों क्वेश्चन था। अब आपको सम करना है बैठ के, तो कैलकुलेटर भी होता है बट जनरली मैं कैलकुलेटर को मना करता हूँ। हम उसको कैसे देखो सॉल्व करेंगे ये सोचना है। तो देखो 210 और 10 220, ठीक है, 220 और 155 और 105 160, तो 220 और 160। थोड़ा तसल्ली से सोचना है, राइट। जहाँ पे जीरो पेंट होता है पहले उनको देखते हैं, ठीक है। नाउ और अगर हम देखेंगे, देखो 21 और 3 24 और 36 60, तो ये भी दोस्तों 60 हो जाएगा, राइट। अभी बचा है 136 एंड 78, ठीक है। तो 136 प्लस 78 ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 64 प्लस 78 में 14 214 दैट इज 214 एंड लास्ट में बचेगा 171। तो इनको ऐड कर सकते हैं, ऑफकोर्स दिस इज 5 7 8 अच्छे 14 से 20 तो 22 एंड 2 दूनी 4 5 2 7 और 1 8, राइट। तो 825 इसका राइट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो 4 5 6 7 8, राइट। तो ये छोटा क्वेश्चन जरूर था बट अच्छा खासा इसमें दिमाग लगाना था कि ये आपके पास 120 तक जाएगा, तो 10 से लेके और ये 120 तक आपको ऐसे ऐड करना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा ही एक सवाल पिछली बार कैट ने पूछा था, तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो बोलता है हमसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का वैल्यू 7x हो जाएगा, ठीक है। नो a की पावर 21 प्लस b की पावर 21 प्लस a की पावर 17 प्लस b की पावर 17 अपॉन a की पावर 19 प्लस b की पावर 19, राइट। तो यहाँ से अगर मैं a की पावर 17 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा a की पावर 4 प्लस 1, और यहाँ से भी b की पावर 17 कॉमन ले लेंगे तो a की पावर 4 प्लस 1 बचेगा। बिल्कुल सही बात है। तो a की पावर 19 प्लस b की पावर 19, राइट। बट पंगा ये है अभी भी a और b तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, ठीक है। a और b इसके रूट्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर करता हूँ, राइट भाई, a और b का रूट का मतलब क्या है कि a भी इसको सेटिस्फाई करेगा, b भी इसको सेटिस्फाई करेगा, एक ही बात है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, हाँ, स्क्वायर बोथ साइड। तो व्हेन यू स्क्वायर, तो दिस इज x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, दिस इज 49 एक्स स्क्वायर, राइट। तो दिस इज x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 51 x की पावर 2, राइट। चलो, तो x a भी है और x b भी है, x की वैल्यू दोनों है, तो आई कैन से x की पावर 4 प्लस 1 जो है वो 51 a स्क्वायर भी होगा, और b की पावर 4 प्लस 1 ये भी 51 b स्क्वायर होगा, राइट। ये बात आते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। a की पावर 4 प्लस 1 51, तो दिस इज a की पावर 17 इंटू 51 a स्क्वायर प्लस b की पावर 17 इंटू 51 b स्क्वायर अपॉन a की पावर 19 प्लस b की पावर 19, राइट। चलो, उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर 51 कॉमन ले लेना है, तो a की पावर 19 प्लस b की पावर 19 बचेगा, और नीचे भी a की पावर 19 प्लस b की पावर 19, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके 51 इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके थिंकिंग लेवल को बढ़ाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन बोलता है, इफ द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर अल्फा या a ग्रेटर देन 0 फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस माइनस 5 have a common real root is 3 upon 2 root b, right। ठीक है, तो a का वैल्यू आपको दे रखा है 3 अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ 2 बीटा, तो बीटा का वैल्यू निकालना, राइट। तो इनके पास एक कॉमन रूट है, राइट, कॉमन रियल रूट है, राइट। चलो, तो अगर इनके पास एक कॉमन रियल रूट है और वो भी a है, ठीक है, that is a equals to 3 upon 2 रूट बीटा। तो आपको बीटा का वैल्यू निकालना, बीटा तब निकलेगा जब a निकलेगा, राइट। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 6ax माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज x स्क्वायर माइनस का 3ax माइनस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये एक इक्वेशन ये आ जाएगी। और यहाँ से दोस्तों अगर मैं इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूँ एंड अगर मैं इसको एक बार माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये एक्स स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4ax और ये बचेगा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। भाई इसको जब आप माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4ax और ये 6 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से माइनस का 4ax इक्वल्स टू माइनस का 6, तो ax का वैल्यू आएगा 3/2। तो ax का वैल्यू अगर 3/2 आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का 4, राइट, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 13 है, तो x स्क्वायर की वैल्यू 13/2 होगी और x इक्वल्स टू रूट 13/√2 हो जाएगा, राइट। तो जब x की वैल्यू √13/√2 आ गई तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a इंटू एक्स बराबर 3/2। तो ये हो जाएगा √13/√2 इक्वल्स टू 3/2। तो a का वैल्यू हो जाएगा 3√2/2√13, राइट। ये a का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा दे रखा था 3/2 रूट बीटा, हाँ √2 बीटा, और ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू a, बट a का वैल्यू तो मेरे पास आ ही गया √2 इंटू रूट बीटा इक्वल्स टू 3√2/2√13, राइट, ऐसा। तो यहाँ से हमको बीटा निकालना है, रूट बीटा, तो 3 से 3 चला जाएगा तो राइट, और तो यहाँ से रूट बीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 बीटा, 2 रूट बीटा इक्वल्स टू 2√13। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा का वैल्यू 13 आ जाएगा। तो बीटा का वैल्यू 13 है। ये भी दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और इसका आंसर बनेगा 13। तो 13 इस सवाल का राइट आंसर। सो आई होप यू एंजॉयड ऑल द क्वेश्चंस एंड दिस सीरीज विल बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा मेरा टारगेट है टॉप 200 क्वेश्चन करने का, तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस आई हैव completed and remaining 100 will be uploaded in the sequential order. So you can follow the playlist also and join Quant Prep 99 if you are really targeting 99. So see you in the next video. Till then, bye, take care.